Welcome everyone. Today we have with us Rajabhau Dabre, a corporate employee who started his wealth creation journey with us way back in 2007 with an nominal investment amount of rupees 1 lakh and an SIP of 6,000 rupees. Now MF portfolio has grown to close to 3 crore rupees. His journey was same as most of the investors, with full of fear, greed and satisfaction in the end. What made him stand out as an investor, that is, he continued to stay focused on his goals and did not let his short-term objectives hamper his long-term dreams. Let's now hear it from Mr. Dabre. Many investors might be having many questions regarding how to manage their investments. Let's go one question at a time. सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, आपके बारे में कुछ बताइए और रिटायरमेंट के पहले आपका करियर क्या था और किस तरीके से था? Thank you for calling me here. Basically, I have started my journey as a mechanical engineer and management trainee, and in big reputed company. That time I don't have much thinking about the saving. Means saving के लिए कुछ स्पेशल हम करते नहीं थे. But when I came in this area in Aurangabad, where I saw Anand Investment, and I started my journey with them as a my income tax return file करने के लिए मैं आया था उनके पास में. He suggested me, I have taken so many LIC policies and so many ICICI, Prudential and all that sort of schemes. It is simply for the sake of income tax saving. Okay. We have a lot of meetings after that, and we plan our financial goals at micro level. So that's sort of we meet the Anand Investment owner and Mr. Kunkulol and all this son. बेसिकली आपको आनंद इन्वेस्टमेंट को लाने का कारण एक ही था, आपका जो इनकम टैक्स का रिटर्न था या फिर इनकम टैक्स का उस टाइम का जो पर्पसेस था कि टैक्स सेव कैसे करें, ये बेसिक आप गोल के साथ में आए थे. राइट. और फिर उसको इलाबोरेट अगर करें तो, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे करते करते जब बाकी चीज़ें पता चली तो समझ में आया कि इनकम टैक्स सेविंग ये पार्ट नहीं है, पर बेसिक सेविंग ये पार्ट अलग है. राइट. आपको आनंद इन्वेस्टमेंट ने कैसे हेल्प किया आपके गोल्स आइडेंटिफाई करने के लिए, और आपको वो गोल्स अटेन करने के लिए क्या क्या चीज़ें हुई उसके बाद? वेल, इट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन. उसके लिए मैं ऐसा कभी पहले तो सेविंग करता था. बेसिक जो हमारे डैडी या ओल्ड जो पीढ़ी थी वो सेविंग पे ज़्यादा उनका कॉन्सेंट्रेशन था. बट हम लोग सेविंग अपने हिसाब से मर्जी से करते थे. बट सिस्टमैटिक प्लानिंग एंड माइक्रो लेवल प्लानिंग जो है वो मैं आनंद इन्वेस्टमेंट से सीखा. आनंद इन्वेस्टमेंट वी स्टार्टेड विथ स्मॉल गोल्स लाइक माय डॉटर एजुकेशन, देन daughters education at abroad, then their marriages and whatnot. So likewise, and at that time I must thanks to Anand Investment that time we planned my retirement at a 55. So we planned reverse way and invested SIP like that. So whatever I have started my journey with this almost 16-17 years back with Anand Investment with very few amount. But then subsequently I have increased my SIP to achieve the small goals with Anand Investments. Sir, what are your thoughts on financial independence? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कैसे किया? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में लोगों को आपके एज में जब आप थे 45-46, आज से 16-17 साल पहले, लोगों को तो बहुत डर लगता था म्यूचुअल फंड में. आज भी लगता है कहीं ना कहीं, आपको भी तो उस टाइम पे लगा था, और आपने ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थ्रू म्यूचुअल फंड अचीव करने किया, तो वो ये कैसा किया और क्या लगता है आपको इंडिपेंडेंस के बारे में? बिल्कुल. वेल, उस समय मुझे एक्चुअली शेयर मार्केट में आदमी जाने को डरता था. बेसिकली वो पीरियड था, लोग बैंक के पास में एफडी रखते थे. मेरी भी एफडीज थी, मैं छोटे करके एफडीज रखता था. बट आने के बाद में मैंने जैसा पहली एसआईपी की और फिर 17 में, तो उसके बाद में 2-3 साल में उसका ग्रोथ करीबन एट ए ट्यून ऑफ
13 to 14% हो गया. तो दैट क्लिक में गिवन मोटिवेशन, सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन. एंड जो मैं पहले जो इन्वेस्टमेंट जो भी करता था अपने दिमाग से करता था, लेकिन यहाँ अभी पूरे फिनेंशियल सीए लोग, ये लोग पूरा स्टडी करके वो लोग करते हैं. दैट मीन्स if I am engineer, mechanical engineer, so I am expert in the machines or all these mechanical things, but I am not expert in finance. But people were thinking they are expert in finance also. But in this, in the way of this Anand investment gave me a complete direction, and I started investing in the mutual funds, increase my SIP in that. Yeah. आजकल की जनरेशन को जब देखते हैं या फिर मेरे जनरेशन, मेरे फ्रेंड्स वगैरह को देखते हैं, तो क्या होता है यूजुअली उनका सैलरी क्रेडिट होने से पहले उनके सारे शॉपिंग ऐप्स फुलफिल्ड रहते हैं, कि भरा हुआ रहता है कि जैसे ही शॉप आएगा मेरे अकाउंट को पैसा, मैं ये चीज़ों से शॉपिंग कर लूँगा. तो वो चीज़ तो आपके साथ भी उस टाइम पे हुई होगी. हाँ ठीक है, शॉपिंग ऐप्स नहीं थे, बट ग्रीड तो आया होगा कि खुद का आप फुलफिलमेंट करो. तो वो आपने बैलेंस कैसा मेंटेन किया, खर्चा, आज का खर्चा और कल की सेविंग में बीच में मैनेजमेंट कैसा किया, बैलेंस कैसा किया? एक्चुअली ये बहुत बार ऐसे इनके साथ में बात करने के बाद में मुझे दिखा कि पेनी सेव्ड इज़ अ पेनी अर्न. आप जितना सेव करोगे वही अर्न किया है, क्योंकि अल्टीमेटली फ्यूचर में वही काम में आने वाला है आपके रिटायरमेंट के बाद में. सो इनिशियली मुझे लगता है जो भी ये नई जनरेशन है, इन्होंने अपना फ्यूचर जो प्लानिंग है, अभी समझो मैंने 55 में किया, तो इन्होंने 50 के एज, 52 के एज में एज ए रिटायरमेंट करके बैकवर्ड प्लानिंग होना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू दैट दे एटलीस्ट सेव, एटलीस्ट 100 रुपये मिल रहा है तो उसमें से 15-20 रुपये तो उसमें से सेव करना चाहिए एवरी टाइम. सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग आई थिंक आई मस्ट सजेस्ट ऑल दिस न्यू जनरेशन. ये जो पूरा वेल्थ क्रिएशन का जर्नी था, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से शुरू होते होते एक बड़ा कॉर्पस जो आपका क्रिएट हुआ, जैसे आपने पीछे भी बताया कि आप छोटे छोटे चीज़ें करते थे, पर वो फिर एक डायरेक्शन मिल गया और वो चीज़ें हुई. खर्चा करने की तो हर एक की इच्छा ही रहती है, पर हम लोगों को डायरेक्शंस था, आपने छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट किया. बट ये रोल में आपको क्या लगता है कि जैसे एक सारथी या फिर एक कोच के कितना ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है ड्यूरिंग द होल कोर्स ऑफ योर सेविंग और वेल्थ क्रिएशन? वेल अगेन इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज आई नो कि हर चीज़ में एक गुरु होना चाहिए, कि आदमी सब कुछ सोच नहीं सकता. जैसा हर चीज़, जैसा फिनेंस के बारे में हमको इतना मालूम नहीं रहता, तो जो प्रोफेशनल लोग हैं वो अच्छी तरह हमको समझा सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं नई गाड़ी लेता हूँ तो उनसे डिस्कस करता हूँ. देन उसमें इंश्योरेंस कौन सा लेना है जिसमें मैं सेव करूँ और मैक्सिमम बेनिफिट मिले, वो मैं देखता हूँ. देन थर्ड थिंग, मैं कोई प्रॉपर्टी जो लेके रखी है जिसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी इज़ वेरी वेरी लेस. जो भी थी मैं खरीदता था पहले, लेकिन वो मैंने फिर बेच के मेरा ये बढ़ाया, पैसा बढ़ाया इधर. देन तीसरी थिंग, मेरा जो फॉर एग्जांपल जैसा हेल्थ इंश्योरेंस हो, देन उसमें 2-3 प्रकार होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, उसमें बेस्ट होके अच्छा पैकेज कहाँ मिलेगा. तो ये छोटे छोटे सेविंग जो फिनेंशियल सेविंग्स है वो मैंने इन्होंने मुझे गाइड किया, काफ़ी अच्छी तरह गाइड किया. और मैं आज जो उस समय मैं सोचा था, मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था कि मैं यहाँ पहुँच पाऊँगा कि नहीं, बट वो अचीव हो गया. वो बिकॉज ऑफ ऑल दिस जो भी है, एक एक छोटे छोटे स्टेप, मुझे एवरी स्मॉल स्टेप लेके मैंने, जैसे मेरे LIC पूरी मैंने, मेरे यहाँ ICICI जो भी है मेरे जो थे, मैंने वो सब निकाल के इधर डाले. और अच्छी तरह से जहाँ देन उन्होंने मुझे बताया कि पोर्टफोलियोज में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, उस प्रकार से उन्होंने वो किया एग्रेसिव, और वो सब वो हिसाब से उन्होंने वो सब पोर्टफोलियोज किए. और मेरा जो गोल था उस समय, और मेरा रिटायरमेंट एट 55 या 58 में जो
मैंने प्लान किया था, दैट आई हैव अचीव्ड विथ हेल्प ऑफ आनंद इन्वेस्टमेंट। यानी कोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी चीज़ के लिए, अगर हम लोग का तात्पर्य निकाले तो इस चीज़ बिल्कुल, गुरु जरूरी है, कोच जरूरी है, बस मस्त। यानी आजकल के जो जनरेशन DIY करना चाहती है, डू इट योर सेल्फ, वो ना करे तो एक कोच, कोई भी कोच ले, पर एक कोच रहे के इन्वेस्टमेंट करे तो आपको प्रॉपर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज दे ये म्यूचुअल फंड में ये नंबर ऑफ CAs देर बैठे हैं जिनको हर कंपनी के बारे में मालूम है, आज क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, ये सब मालूम। वो देख के आपकी इन्वेस्टमेंट वो करते हैं, आपने कहाँ जाना है वो करते हैं। आपको शायद मालूम होगा लेकिन वो डेप्थ तक आपको मालूम नहीं होगा, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट इन देयर दिस थिंग फिनेंशियल इसमें। तो आई थिंक सो दो डायरेक्शन एंड द सारथी इज रिक्वायर्ड। लास्ट एक क्वेश्चन हम लोग पहुँचेंगे कि भाई जो आज का ब्रेड अर्नर है वो भले ही उस पर फैमिली डिपेंडेंट हो या ना हो, दैट इज़ सेकेंडरी, क्योंकि कहीं कहीं उनके फादर्स वगैरह भी अभी भी अर्न कर रहे हैं या फिर कुछ पैसा है घर पे, फैमिली बड़ी है तो फ़र्क नहीं पड़ता। पर जो ब्रेड अर्नर्स है उनके लिए आप आपके तरफ से क्या एक एडवाइस क्या देना चाहेंगे कि भाई एक एडवाइस मेरी रहेगी कि आपने अचीव किया है, बिकॉज आप इस जगह पे बैठ के हो कि आप एडवाइस इसके लिए दे सकते हो कि आपने वो स्पेसिफिक चीज़ अचीव की है, आपका खुद का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव किया है, तो वो आप ब्रेड अर्नर को एक क्या एडवाइस देना चाहोगे? उसमें मुझे लगता है कि जैसा मैंने बोला कि जितना आप सेव करोगे वो अर्न किया है, मीन्स एवरी पाई सेविंग इज अर्निंग। सो वो प्रिंसिपल से चलो, जो भी आपका पैसा आता है मंथली, तो उससे आपका एक गोल रहना चाहिए, और आपने मिनिमम इतना मैं ये महीने में करूँगा सेविंग, या मैं भी बोलो 10% 20% ये सेविंग करना ही ज़रूरी है, सो दैट मेरे लॉन्ग टर्म के फाइनेंशियल गोल्स अचीव होना चाहिए। और आज मुझे तकलीफ होती है, उस समय वो उतने पैसे में गुजारा करने के लिए, लेकिन एट ए एज जो प्लेजर मिलता है कि एट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, एक्चुअली मुझे उस समय पैसे की बहुत ज़रूरी रहती है जिस समय मैं रिटायर्ड होता हूँ या मैं मेरे बेटी की शादी के लिए पैसा लगता है। तो जब एट द एंड ऑफ दिस थिंग रिटायरमेंट, तो वो पैसा का फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलता है। तो पहले आपको तकलीफ होगी सेविंग में, तो वो ज़रूर करना चाहिए, और वो बाद में रिटायरमेंट का आनंद उठाना चाहिए एंड में। सो दैट्स माय एडवाइस। आप इसमें अगर मैं छोटा सा जोड़ना चाहूँ तो ऐसा आप ऐसा बोलना चाहते हो कि भाई जब लास्ट में आपके पास पैसा नहीं रहेगा या एनर्जी नहीं रहेगी, उस टाइम पे आपके पास में थोड़ा थोड़ा पैसा जो जुड़ के रहेगा उसका आप लुत्फ उठा सकोगे जो आज उठा नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस। जो मैंने पहले जो भी नहीं किया था वो मैं कर सकता हूँ आफ्टर रिटायरमेंट, जो मुझे इसमें विथ फाइनेंस। चलेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आपका समय देने के लिए। होप हमारे जो भी वीडियो देखेंगे इस चीज़ को तो उनको उस चीज़ से कुछ ना कुछ इनपुट मिलेगा, उनका लाइफ वे ऑफ लाइफ और वे ऑफ स्पेंडिंग सेव करने के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। थैंक यू। So once again, I must thank you the Anand Investment, so that I get all these financial gurus for me. So thank you so much. Thanks.